while converting any infix expression into its equivalent postfix form, the one very simple method is that you fully parenthesize the entire expression. As the expression written here, you can see b exponent c will be solved first. This is the first operation that will be performed. After that, multiplication and division, they both have the same priority. Okay, so when we have the operators having same priorities, what we do, we will go from left to right. So multiplication will be performed first, then comes your division. So this is for division, and finally what you will do, you will subtract the result from A. So this is how we have fully parenthesized the expression. And now what you need to do, you just simply take the operators out of their parentheses. And this one is for this. So in this way, if I write, first of all, I have this arrow which represents minus, then this one divide, फिर E के बाद आपका आ गया asterisk, फिर D, and after D this is arrow, C, B and A. So this was the correct result. So because powers have the highest priority, here देखिए the operators which we have is minus, power, multiplication and division. इन चार में से सबसे हाई प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट सबसे पहले सॉल्व होगा. फिर बचे तीन, इन तीन में माइनस की प्रायोरिटी तो इन दोनों से कम है, स्टार एंड डिवाइड. तो और स्टार एंड डिवाइड दे आर एट सेम प्रायोरिटी लेवल्स. So when we have the operators at same priority level, then what we do, we go from left to right. So asterisk, I mean multiplication will be performed first, then division, and finally subtraction. So according to that, we have fully parenthesized the expression, and you just need to bring all the operators out of their respective parentheses for making the expression a postfix one. Now I am going to explain another method for converting this expression, this infix expression, into postfix form. So how we will proceed? See. So I am going to make a table. This is serial number, then element, action, stack status, and finally the result. Are these 5 headings clear to all of you? First is serial number, then element, then action, stack status, and result. Fine. Now see how we will solve this. What is the first element in this expression? Tell me, anybody. A. What? A. So at very first we have A as element. Now let me know whether A is an operand or operator. Operand. Operand, fine. So whenever we have an operand, what action we have to take? We have to print that operand. Print का मतलब है that will go to the output section. So action was print. समझ गए?
तो मैं अभी जब भी प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट का मतलब है दैट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, दैट विल बी इन द रिजल्ट। फाइन। अच्छा, स्टैक स्टेटस का मतलब क्या है? अभी आप ये समझ लीजिए कि ऐसे करके एक खाली बर्तन है, तो इनिशियली इसमें क्या है? क्या है इसमें? कुछ नहीं है, खाली है। खाली है ना? तो इनिशियली स्टैक का स्टेटस है खाली। ये हैश सिंबल में जो लगाया हूं, तो इनिशियली आई एम टेकिंग दैट माय स्टैक इज एम्प्टी। फाइन। तो whenever I will push anything into the stack, then I will show you how. तो print का मतलब है stack remains empty। stack के स्टेटस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि stack में कुछ डाला नहीं है हमने, सीधा इसको प्रिंट किया है। and in the result I will write A। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया आपके? आ गया? Is this step clear? आ गया। Now, what is the second element? What is the second element? B। Minus. Minus. Okay, here you can see the minus is the second element. Minus is an operator or operand? Operator. तो ऑपरेटर के केस में अब आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको समझना है। ठीक है? ऑपरेटर के केस में आपको ये देखना है कि स्टैक में सबसे ऊपर, यानी स्टैक में सबसे ऊपर ये जो एलिमेंट है यानी ऑपरेटर है, इससे हाई प्रायोरिटी का या इक्वल प्रायोरिटी का ऑपरेटर स्टैक के अंदर सबसे ऊपर तो नहीं है। तो सिंस एट दिस पोजीशन वी हैव आवर स्टैक एम्प्टी, there is no operator right now. So what we need to do, we will just push this element into the stack. तो आपका मैं सबसे पहला एलिमेंट अब ये पुश करने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो मैंने स्टैक के स्टेटस में लिख दिया, अब माइनस है स्टैक के अंदर। फाइन। एंड सिंस nothing was given to the result is still A। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले क्लियर बताओ। Yes. आ गया सर। आ गया सर। Now the third element is B। B is an operand। तो ऑपरेंड पे हमेशा एक ही एक्शन लेना है आपको कि it will go to the result section and I mean प्रिंट। तो स्टैक में अभी भी हमारे माइनस ही है सबसे ऊपर, और रिजल्ट में हो गया ए बी, बिकॉज बी अब प्रिंट हो गया तो रिजल्ट आ गया, पहले ए था अब हो गया ए बी। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंट। अगेन एन ऑपरेटर इज देयर। तो ऑपरेटर के आते ही आपने देखा कि स्टैक में सबसे टॉप पर कोई ऑपरेटर ऐसा तो नहीं है जिसकी प्रायोरिटी इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। तो वी कैन सी दैट एट प्रेजेंट वी हैव माइनस एट द टॉप। तो माइनस की प्रायोरिटी तो इससे कम होती है एक्सपोनेंट से। तो इसका मतलब है कि हम सीधा इसको पुश करना है। ये हमने इसको पुश कर दिया, तो माइनस पहले था और एक्सपोनेंट और चला गया उसमें। तो नाउ द स्टैक स्टेटस इज माइनस एक्सपोनेंट, ये दूसरा एलिमेंट यहां पे आ गया। ठीक है? एंड रिजल्ट इज स्टिल ए बी। देन द फिफ्थ एलिमेंट इज सी, और सी अगेन बिकॉज ऑपरेंड है तो द सिंपल ऑपरेशन प्रिंट विल अप्लाई हियर ए बी सी। ये स्टेप क्लियर हो गए ना यहां तक के? अभी तक कोई डिफिकल्टी आपको समझने में? No. Okay. Now move ahead. Sixth. Now we have asterisk. अब स्टार इज एन ऑपरेटर। अब आपको फिर वही देखना है, ऑपरेटर पे हमेशा आपको करना क्या है? You have to look upon the topmost element in the stack.
तो अभी आपने देखा कि एट द टॉप आई हैव एक्सपोनेंट which has greater priority than multiplication. Fine. तो मैंने ये कहा था कि अगर ग्रेटर प्रायोरिटी का है तो आपको क्या करना है, पहले इसे स्टैक में से बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम एक ज्यादा प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के ऊपर कम प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पुश नहीं करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, इसको हमने बाहर निकालना है, और बाहर निकालने का ऑपरेशन क्या कहलाता है स्टैक में से? पॉप। तो हमने क्या कहा, पॉप करिए, और साथ में ही इसको पॉप करने के साथ ही इसको क्या कर दिया, प्रिंट। तो हमारा एक्शन हुआ पॉप एंड प्रिंट। अब जब ये पॉप हो गया यहां से, तो टॉप पे क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि ये तो बाहर निकल गया एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब स्टैक में अब रह गया हमारे माइनस, और क्योंकि ये पॉप करके प्रिंट भी किया गया है, तो इसका मतलब है ये हमारा ए बी सी और एक्सपोनेंट ये हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? यस। अब आप देखिए कि अभी भी आपको ये देखना है कि टॉप में जो ऑपरेटर इस समय है वो इससे ज्यादा प्रायोरिटी का या बराबर का तो नहीं है। अब हम देख रहे हैं माइनस है जिसकी प्रायोरिटी इस एस्टेरिस्क से कम है, तो अब आप इस एस्टेरिस्क को यहाँ पे पुश कर देंगे, तो द सेकंड एक्शन विल बी अ पुश। तो पुश करने से स्टार यहाँ आ जाएगा और स्टैक स्टेटस हो जाएगा माइनस स्टार। रिजल्ट आपका यही रहेगा ए बी सी एक्सपोनेंट। तो इस ऑपरेटर के आने पर हमारे दो काम हुए कि एक एलिमेंट को हमने पॉप किया स्टैक में से और प्रिंट किया, और फिर उसके बाद इस एलिमेंट को स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है, इतना। अब नाउ द सेवेंथ स्टेप क्या है, डी। क्या करना चाहिए हम इसका, प्रिंट। गुड। स्टैक के स्टेटस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो। तो द रिजल्ट विल बी ए बी सी एक्सपोनेंट डी, ठीक है? ओके, यस सर। नाउ 8 योर डिवीजन। अब देखिए फिर एक ऑपरेटर आ गया। अब आपने देखा कि क्या टॉप पर जो एस्टेरिस्क है इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा या बराबर तो नहीं है? तो भी बराबर है ना? तो बराबर प्रायोरिटी का भी ऑपरेटर टॉप पर है, तो पहले उसे निकाल के प्रिंट करना है, यानी पॉप एंड प्रिंट। तो हमने इसको पहले क्या किया, पॉप एंड प्रिंट। तो स्टैक में रह गया केवल माइनस, ये हट गया, और आउटपुट में आ गया आपका ए बी सी एस्टेरिस्क डी और स्टार। नाउ अगेन यू विल चेक कि अब जो ऑपरेटर टॉप पर है इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा या बराबर तो नहीं है? अभी नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पुश कर देना है। तो इसमें आ गया डिवाइड सबसे ऊपर, यानी इसमें हमारे स्टैक के स्टेटस में रहा माइनस, फिर उसके ऊपर डिवाइड, और रिजल्ट इज स्टिल डी स्टार। फाइन। Now the ninth element is E. Okay, so E will be simply printed minus divide A B C caret D star E. ये हो गया. Now the next step, and now we are left with no element in this expression. E was the last one. So what we do कि अभी हमें पता चल गया कि now our expression has finished.
तो हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि वट एवर वी हैव इन द स्टेप उसको पॉप करके प्रिंट करना है। अभी लास्ट में जब हमारे पास कुछ नहीं है एलिमेंट, तो हमें जो कुछ भी स्टैक में बचा है उसको पॉप करना है और प्रिंट करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चलिए ये सेमीकोलन इज द लास्ट एलिमेंट। तो सेमीकोलन आने पर आपको पता चल गया कि दिस इज वेयर आवर एक्सप्रेशन इज एक्चुअली एंडिंग। So what do you need to do? You will pop and print. तो pop and print से स्टैक में क्या रह जाएगा, स्टेटस क्या होगा? empty एम्प्टी कैसे? अभी देखिए माइनस है और ये डिवाइड है, माइनस रह जाएगा। माइनस रह जाएगा। ये हो जाएगा ए बी सी डी स्टार ई और डिवाइड, क्योंकि डिवाइड को हमने निकाल लिया और प्रिंट कर दिया। अभी भी रह गया है इसमें एक एलिमेंट, तो अभी फिर से एक बार पॉप एंड प्रिंट अप्लाई करेंगे। तो अभी ये हो जाएगा खाली और आपका ये हो गया ए बी सी स्टार डी स्टार ई डिवाइड एंड माइनस, एंड नाउ नथिंग इज लेफ्ट इन द स्टेप। Then you will simply stop this process, and whatever you are getting is the result postfix expression ABC caret D into E divide minus। Is that clear? पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही थी हमने वैसे की थी पैरेंथेसाइज वाले मेथड से, वो और ये आप चेक करिए बराबर है कि नहीं है। तो अभी मैं एक एक्सप्रेशन और लेता हूं, अब उसमें मैं एक काम करूंगा कि जो ये इसमें नहीं आई है चीज वो उसमें आएगी, तब उस पे क्या करना है, मैं क्या एक्शन लेना है वो भी आपको समझा देता हूं, ठीक है। अभी इसमें आपको ऑपरेंड पे क्या एक्शन लेना है ये समझ में आ गया, और ऑपरेटर पे क्या एक्शन लेना है ये समझ में आ गया, ठीक है। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर, इनके अलावा एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूं देखो क्या हो सकता है। अभी मैं एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं, मैं ये कर दे रहा हूं कि a इंटू बी माइनस सी डिवाइड डी प्लस ई, सही है। अब इसमें देखिए आपको क्या दो चीजें नहीं दिख रही हैं ये बता दो आप। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का एक्शन आप समझ लेंगे, अब बाकी एक्शन तो ऑपरेटर ऑपरेंड के मैंने बता दिए, ब्रैकेट्स का और समझ लीजिए, है ना। देखिए नंबर 1 वी हैव ए, आवर एक्शन विल बी इनिशियली आवर स्टैक इज एम्प्टी, this action will be print, stack is empty, A is the result, fine। Second star, बताइए क्या ऑपरेशन हो, एक्शन क्या होगा, फटाफट बताइए। What will be the action? Push। Okay, quite। पुश का मतलब स्टार आपका स्टैक में आ गया एंड रिजल्ट इज स्टिल ए। Now the third element is opening bracket. So opening bracket पे you have to take only one action. You have to push this opening bracket into the stack. तो ये आपने पुश करना है, हमेशा पुश करना है ओपनिंग ब्रैकेट को। तो स्टार पहले से था और इसके ऊपर आ गया ओपनिंग ब्रैकेट, रिजल्ट अभी आपका ए ही है। फोर्थ वी हैव बी, बी का मतलब सिंपली प्रिंट होगा, तो स्टार ए बी, सही है। बी तक समझ में आ गया। पांचवा माइनस, अब माइनस पे आपने देखा कि ये जो ब्रैकेट है टॉप पर है, तो ऑपरेटर नहीं है वो, तो ऑपरेटर नहीं है तो हम सीधा पुश करना है,
तो ये आ गया स्टार ब्रैकेट माइनस ए बी। तो अभी नाउ वी हैव माइनस एट द टॉप, 6 सी प्रिंट स्टार, प्रिंट का मतलब ए बी सी, ठीक है। नाउ 7th स्टेप वी हैव डिवाइड। इस पे क्या एक्शन होगा जरा बताएंगे कोई? डिवाइड खुश होगा बिकॉज ये टॉप पर है ना, माइनस इज एट टॉप, तो माइनस की प्रायोरिटी इससे तो कम है, तो कम प्रायोरिटी वाले के बाद ऊपर आ जाएगा ये खुश। तो स्टार और ये डिवाइड आ गया, रिजल्ट इज स्टिल अभी एबीसी है। 8 इज डी, डी पे आपको सिंपली प्रिंट करना है स्टार वीडियो पोस्ट ABCD, डी पे प्रिंट करना था। नाउ टॉप पे हमारे है डिवीजन, ABCD इज द आउटपुट। अब आप समझिए कि क्लोजिंग ब्रैकेट पर आपको क्या एक्शन लेना है वो आपको समझना है, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट तो हमेशा पुश करना है, क्लोजिंग पे क्या करना है ये समझिए एकदम से। क्लोजिंग ब्रैकेट पर आपको तब तक स्टैक में से सारे एलिमेंट को पॉप करके प्रिंट करना है जब तक कि टॉप पर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाए। यानी ओपनिंग ब्रैकेट जब तक टॉप पर नहीं आ जाता तब तक सारे एलिमेंट्स को बाहर निकालिए और प्रिंट करिए। तो देखिए टॉप पर अभी हमारा है डिवीजन, तो अभी हमने इसको पॉप करा और प्रिंट करा। What remains in stack? ये रहा A B C D और ये डिवाइड आ गया आपके बाहर प्रिंट में। अभी भी आप देखें टॉप पर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आया है, तो अभी इसको भी बाहर निकालिए, पॉप एंड प्रिंट। तो नाउ रिमेन्स स्टार एंड ओपनिंग ब्रैकेट, और ये आपका आ गया A B C D डिवाइड माइनस, बिकॉज माइनस को हमने निकाल के प्रिंट कर दिया। आफ्टर दिस अब हमने देखा टॉप पर राइट नाउ वी हैव ओपनिंग ब्रैकेट ऑन टॉप, तो इसको आप केवल क्या करेंगे, पॉप करेंगे, निकालेंगे, केवल स्टैक में से निकाल देंगे, प्रिंट नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्लोजिंग ब्रैकेट पर आपको जो एक्शन लेना है वो ये है कि क्लोजिंग ब्रैकेट आने पर हमने ये देखा था कि टॉप पर ये है डिवाइड, तो हमें क्लोजिंग ब्रैकेट पर जो एक्शन लेना है वो ये है कि हमें तब तक स्टैक में से सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल के प्रिंट करना है जब तक कि टॉप पर ओपनिंग ब्रैकेट ना आए। तो हमने देखा कि ये जब क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास आया तो स्टैक की पोजीशन थी कि 2 ऑपरेटर ऊपर हैं ओपनिंग ब्रैकेट से, तो हमने दोनों को निकाला पहले और प्रिंट किया यहाँ पर, और फिर जब टॉप पर आ गया हमारा ओपनिंग ब्रैकेट तो इसको हमने क्या किया, केवल निकाला, प्रिंट नहीं किया। तो यहां रह गया स्टार और ABCD डिवाइड माइनस, यही पोजीशन। तो इतना एक्शन क्लोजिंग ब्रैकेट के पे देना है, यानी ओपनिंग ब्रैकेट तक आके ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर देना है बस, और रुकना है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज प्लस। अब आप देखें कि प्लस के केस में स्टार हमारा सबसे ऊपर है जिसकी प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है, तो पहले स्टार को बाहर निकालिए, पॉप एंड प्रिंट, ये खाली हो गया, ABCD डिवाइड माइनस स्टार, और फिर अब इसको पुश करना पड़ेगा, तो प्लस आ गया ABCD डिवाइड माइनस स्टार। फाइनली E, तो E हमारा है, E पे प्रिंट करना है, प्लस ABCD डिवाइड माइनस स्टार E, और 12 पॉइंट पे हमारे पास सिंपली में से सेमीकोलन, तो सेमीकोलन पे हमें बताया जैसे लास्ट होने पर व्हाटएवर वी हैव इन आवर स्टैक वी हैव टू जस्ट पॉप इट एंड प्रिंट।
So we have only plus symbol. We are going to pop and print. Stack will be empty. A, B, C, D divide minus star E plus, and we will stop. So this is what we can say: A, B, C, D divide minus star E plus. This is the final expression in postfix form. You can check its correctness by that previous method that we explained, that is fully parenthesizing the expression. आप उस मेथड से चेक करके देख सकते हैं. मैंने केवल इसमें दो, एक तो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, इन दो के एक्शन नहीं है. ओपनिंग पर तो हमेशा पुश करना है आपको, और क्लोजिंग पर यह करना है कि सारे एलिमेंट्स को तब तक पॉप एंड प्रिंट करना है जब तक कि टॉप पर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाए, और ओपनिंग ब्रैकेट के आते ही उसको केवल पॉप करके यानी निकालना है, प्रिंट नहीं करना ओपनिंग ब्रैकेट, और वहां रुक जाना है. फिर आप नेक्स्ट आगे. बस केवल ये दो एक्शन इसके नए हैं इस एक्सप्रेशन